Good evening, everyone. I hope my voice is clear to everyone. Someone please type in the chat box if I am audible clearly to everyone. Yes. Okay. Okay, sir. Before we start to our webinar, let us first introduce our speaker of the day today, Dr. Shilpa Patil ma'am. Today we are gathered here to know about uh, tongue examination, okay, about the tongue mapping. We all know about the darshan pariksha of tongue, but whenever we come across in our patients, we just think about samavastha of whether the tongue is sam or niram. Apart from this, we don't write anything on our case paper. So even I am eager to know what is more in depth apart from the sam and niram jiva, because when I got this topic from ma'am, Dr. Shilpa ma'am, we all know that Dr. Shilpa ma'am, she is a very good motivator and she is a international speaker. She has delivered thousands of lecture on different topics, and she has delivered uh, all these lectures like throughout the COVID period. If you have gone through the YouTube channel also, you can find many of her lectures on the YouTube channel. She has done her PG diploma in medical education, Ayurveda, and on various virtual platforms she has delivered on different topics. She was been as a guest lecturer. She's also been working on the editorial board member of the research journals. She has published textbooks as per MUHS syllabus on Kriya Sharir, which was approved by MUHS University. She has an experience of teaching research methodology and medical statistics. Also, she has published a book on research methodology and medical statistics for UG and PG students. She is also an editor of a book, Therapeutics in Gynecology. She is also an editor of a book, Obesity and Ayurveda Approach. She has contributed many chapters in the book PCOD, Obesity Therapeutics in Gynecology. She has published her book on food for dosha, which was an international publication. So till now, she has taught on the online platform and face to face also thousands of students. And she has like her main area are on Prakriti and Dhatunusar clinical application and Nadi Pariksha, tongue diagnosis or tongue mapping, Ayurveda dietetics. These are her areas of expertise. She has also published many e-books on Prakriti, Dhatu Sarata, infertility, Shlokavlis, Tridosh Prakriti, and many more. She has organized many virtual conferences and Sanhita sessions, which you can follow on the YouTube channel. She is a regular writer in magazines. So basically, we are all gathered today to get an extract from Shilpa ma'am that why tongue diagnosis is important in our practice, how it will help us today in our practice. Dr. Shilpa ma'am, I think I have started the recording also. Yes. Okay. Okay. Good evening to Uh, all. Namaskar sabhi ko. May I start the session? yes, ma'am. Yeah. So thank you very much, Dr. Manju ma'am, for this nice introduction. And आज मैं आपको हिंदी भाषा में टंग डायग्नोसिस या टंग मैपिंग के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जिह्वा परीक्षण, आप सभी ने ये विषय पढ़ा होगा। और जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था कि ये विषय इतना लंबा है, इतना थरो और इतना इम्पोर्टेंट है, इतना डेप्थ वाला है। अब सभी की जिज्ञासा आज के सत्र के लिए होगी कि ये आया कहाँ से, आयुर्वेद के किस संहिता पे, कहाँ पे इसको बताया गया है, कहाँ पे इसका वर्णन किया। तो बिल्कुल मैं आज का ये हमारा सत्र डेमो वेबिनार है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि आपकी रुचि आयुर्वेद के इस अष्टविध निदान परीक्षा के एक घटक की तरफ मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, जो कि आने वाले समय में आपके प्रैक्टिस में चार चांद लगा दे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो, अपने निदानी स्किल्स को बढ़ाए। और मेरा ये विश्वास है कि
हर इंसान को कुछ ना कुछ डेली सीखना चाहिए और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सो लर्निंग ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए और इसी मोटिवेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए आज हम जीवा परीक्षण के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि कफ शोणित मांसानाम सारो जीवा प्रजायते। कफ शोणित मांस के सार भाग से जीवा बनी है। आप सभी से मैं इंटरैक्टिव सेशन करना चाहूंगी, आप सभी एक्टिव रहिएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो अपना वीडियो ऑन करके इस सत्र में समाविष्ट हो सकते, ताकि ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही वीडियो ऑन करके बात कर रही हूँ। तो आप भी कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से इस सत्र को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मैं बीच में कुछ प्रश्न पूछूंगी तो आप जरूर इसको रिस्पॉन्स करिएगा चैट बॉक्स के जरिए। सो नाउ अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा पहले इतिहास बताना चाहूंगी टंग मैपिंग के बारे में, यानी टंग डायग्नोसिस के बारे में, कि ये हम कहाँ से सीख रहे। बिल्कुल ये हमारा संहिता बेस ही है। आचार्य चरक, आचार्य अष्टांग हृदय मेवाड़ भट्टाचार्य ने, और जहां जहां पर भी अलग अलग, देखिए जीवा परीक्षण का कहीं पर भी आपको किसी संहिता में आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक जगह पे इकट्ठा कोई आपको नहीं मिलेगा। वैसे नाड़ी परीक्षा के बारे में भी नहीं लिखा गया है बहुत क्लियर, लेकिन नाड़ी परीक्षा आपको कैसी करनी है। स्पर्शन परीक्षा के अधिकार में, स्पर्श चिकित्सा के अधिकार में, स्पर्शेंद्रिय के अधिकार में हम इसको, या आई विल, या मैम, यस यस, आई विल यूज इंग्लिश ऑल्सो, ओके, बिकॉज आई थिंक हिंदी भाषा सभी के लिए कंफर्टेबल होती है। सो तो ये आचार्य योग रत्नाकर की अष्टविध परीक्षा से आता है, नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दुख आकृति। जैसे अभी मंजू मैम ने भी बताया कि जीभ का परीक्षण हम बहुत ज्यादा डीप जाकर नहीं करते हैं, बस हम साम और निराम लिख देते हैं। बट आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे विचार से, लाइक मेरा जितना नॉलेज है उतना उससे मैं बताना चाहूंगी। अगर आपको पता होगा तो जरूर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आयुर्वेद के किसी भी संहिता ग्रंथों में डायरेक्टली साम जिह्वा के लक्षण नहीं बताए। आचार्य जैसे कि चरक संहिता में विमान स्थान में उसका वर्णन आया है, साम जिह्वा मलोपचित, आम के लक्षण बताए हैं, निराम के लक्षण बताए हैं, साम दोषों के, मल के, मूत्र के लक्षण बताए हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कृपया आपको इस बात की जानकारी हो तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। अष्टो स्थानानि यानी देहे सर्वात्मके मले जिह्वाच नेत्र स्वरच मलमथा अंगुली, चरक संहिता के विमान स्थान में ये रेफरेंस आया है। यथा स्फटासु मधुरम पित्तमाम्ल मन्यते जिह्वा या वर्णमायत्या कपहाट निटम उदीरयते, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का ये सूत्र है। So the tongue can reflect internal health, revealing imbalances of pitta kapha and vata, thus aiding in diagnosis. बट ये जैसे आयुर्वेद के संहिताओं में बताया है, अलग अलग बाकी मेडिकल पैथी में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आज एक इस सत्र के जरिए मैं आपके सामने मेरे इस विचार को रखना चाहूंगी, जिस पर मैंने काफी काम भी किया है। स्निग्धामम आमयम यानी यथान्यम आमयनायते जिह्वा या रूपम यान्ति व्याधि कारणेतम, सुश्रुत संहिता के निदान स्थान का ये सूत्र। The tongue's appearance indicates underlying health conditions helping in the differentiation of diseases. जिह्वा ये हमें स्पर्शनेन्द्रिय है, जिह्वा ये रसनेन्द्रिय है, रस का ज्ञान कराती है। जिह्वा ये कर्मेंद्रिय है, हम बोलते हैं, हम हमारी मुख से जो शब्द आते हैं ये जिह्वा के स्पर्श से आते। जीवा ये बोलने का काम करते हैं, हम दिन भर में जीभ का उपयोग बोलने के लिए करते हैं। और ये हमारा, मैं थोड़ा इसमें भी बताऊंगी आपको आगे, जैसे 5 दिन का ये फुल कोर्स होगा उसमें हम जानेंगे जीवा के डिटेल परीक्षण के बारे में। बट मैं अभी जो बोल रही हूँ, आपका बोलना, आपकी वाणी, अगर हम यहाँ पे दोष धातुओं का विचार करेंगे तो हमारी वाणी हमारे त्रिगुणों से प्रभावित होती है, हमारे अंदर के दोषों से, यानी हमारे दोषों के आधिक्य से, डोमिनेंस ऑफ दोषा, दैट मीन्स द प्रकृति, प्रकृति के विचार से। यानी जो व्यक्ति, जैसे कि कफदोष का आवाज अत्यंत मधुर होता है, उनका स्वर भी हमें सुनने में अच्छा लगता है। पित्त भी मेधावी गुणों के साथ, सत्व गुणों के साथ, पित्त भी प्रभावी रूप से अपना वक्तव्य रखता है। और जहां पर वात के स्वर की बात आती है तो वहां पे प्रत्यत, रुक्ष, क्षाम, क्षीण, जीर्ण ऐसे आवाज बताए गए हैं। तो ये वात के धातु की स्थिति के कारण, जैसे कि वात दोषाधिक्य में धातुओं की
हमेशा कमजोरी रहती है, उपचय नहीं होता है ठीक से, इसका परिणाम डायरेक्टली जाकर स्वर पर होता है। और कहीं ना कहीं त्रिगुण भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पित्त सत्व गुणोत्तर, पित्त के अंदर सत्व गुण होता है, जिसके कारण पित्त प्रकृति की वाणी में प्रखरता होती है, स्पष्ट वक्ता कहा जाता है। दे आर डोमिनेंट स्पीकर, कभी भी अपने वक्तव्य में वो हारते नहीं है, हमेशा अपनी बात रख देते हैं और पूरे सामर्थ्य के साथ। तो कहीं ना कहीं हमारे बोलने में, हमारे विचारों में, हमारे त्रिगुणों का, हमारे दोषों का परिणाम होता है। इसी प्रकार से जब आप अपने क्लिनिक में बैठकर रुग्णों का परीक्षण कर रहे, तो आज के बाद या जब आप इस सत्र को पूरी तरह से सीखेंगे, मेरा ये विश्वास है, जैसे हम नाड़ी से दोषों का ज्ञान करते हैं, दोषों की अधिकता या अलग अलग स्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, वैसे ही उससे ज्यादा स्पष्ट जीभ का परीक्षण हमें बहुत कुछ बता देता है। इवन आपको बहुत ज्यादा महंगे महंगे डायग्नोसिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना बिल्कुल ये होगा, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डायग्नोसिस मत करिएगा, बट आप डायग्नोसिस को मिनिमाइज करके अपने नैदानिक स्किल्स को बढ़ा दीजिएगा, और आपको आश्चर्य होगा कि इवन थायराइड जैसी बीमारियों को भी आप टंग डायग्नोसिस के जरिए जान सकते हैं। जीवा एक ऐसा स्पर्शनेंद्रिय, जैसे आप खाना खा रहे और आपके खाने में, आपके निवाले में मान लीजिएगा कोई कंकर आ जाता है, तो हम तुरंत जीभ के जरिए हमें पता चलता है, हम इस कंकर को निकालने का प्रयास करते हैं। यानी हमारा ये वागेंद्रिय, ये जीवा, ये स्पर्शन इंद्रिय के रूप में भी काम करता है। वी कैन ऑल्सो कंसिडर जीवा एज ए स्पर्शन इंद्रिय, बिकॉज इफ एनी फॉरेन मटेरियल, एग्जाम्पल हेयर, पिन, when comes in contact with jiva, it can be sorted out and can prevent its ingestion, हम इसको रोकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ रेफरेंसेस है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जीवा परीक्षण की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया, योग रत्नाकर, आचार्य चरक, वाग्भट में इसका उल्लेख मिलता है, बट इसको हमने एक्सप्लोर किया है अपने तरीके से, अपने अनुभव के साथ। और इसमें कुछ जैसे कि अलग अलग डायग्नोस्टिक मेथड्स जो है, चाइनीज डायग्नोस्टिक मेथड्स, इसका भी इसमें मिक्सर या इसका भी हमने इसमें अंतर्भाव किया है, क्योंकि हमें ये मानना है कि जहां से भी हमें कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है, अपने स्किल्स को बढ़ाने का, तो वो हमें अपना लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये चित्र आया है, मैं कुछ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के जरिए भी आपको सिखाऊंगी। सो ये तीन पिक्चर्स, जैसे कि हम जीप को किसी के देखते हैं, तो अलग अलग बहुत ही अलग अलग चित्र हमारे सामने आता है। किसी की जीभ मोटी होती है, कोई जीभ बाहर निकालता है तो जीभ में कमकमाहट होती है, कांपती है जीभ। तो ये कांपना क्या किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण है? कौन से दोष का कारण है, बताइए मुझे। अगर किसी व्यक्ति की जीभ कांपती है तो ये किस दोष का लक्षण है? आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं कृपया। मेरा बस ये है कि इसके पीछे आप सभी का ध्यान बने रहे, आप इंटरैक्ट करें। जी आस्था जी वेरी नाइस, मनीषा जी, शिल्पा जी, मोहम्मद रेहान जी, गुणवंत जी वेरी नाइस। बिल्कुल, वात के कारण। तो क्या अभी हमें यहाँ पे कुछ आपके डायग्नोसिस के बारे में कुछ आ रहा है कि आगे हमें क्या सोचना है? अगर कोई जीभ निकालता है, कांप रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी ने अच्छे से उत्तर दिया, वात दोष के कारण। तो बिल्कुल इस व्यक्ति की प्रकृति हम जान सकते हैं। किसी की जीभ बहुत एकदम से ज्यादा रेड चेरी कलर की है, तो हमारा आगे का एग्जामिनेशन कहाँ किस तरफ जाएगा, बताइए श्रुति जी, सृष्टि जी, राजश्री जी, कहाँ जाएगा? हम अगर किसी की जीभ एकदम बहुत ही चेरी रेड कलर की है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा और आगे हमारे प्रश्नों का रुख किस तरफ जाएगा? हम क्या पूछेंगे आगे हम उस व्यक्ति से? चैट बॉक्स में डालिए कृपया। जी बिल्कुल, तो हम क्या पूछेंगे आगे? क्या पूछेंगे? मुखपाक है, कभी बुखार आया था, इन स्पेसिफिक विटामिन डिफिशियंसी के कारण है। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि जीभ का जब भी कोई जिक्र करता है तो बस हमारे दिमाग में एक ही आता है, साम जीवा, निराम जीवा, इसके आगे हम जाते नहीं, बस इतना ही डायग्नोसिस करते हैं, आम को देखते हैं जीभ पर, और बस बाकी ट्रीटमेंट एंड बाकी डायग्नोस्टिक एरिया की तरफ हम मुड़ जाते हैं, और बस वहीं पे हमारा जीवा परीक्षण समाप्त होता है। बट ऐसा नहीं, ये जीभ बड़ी कमाल की चीज है। इसके जरिए आज आप सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने नैदानिक स्किल्स को एक्सपांड कर सकते हैं।
अब जीभ का आकार, जैसे मैंने कपाहट बताया, जीभ का आकार, अगर किसी की जीभ लंबी है, पतली है, जीभ की विकृतियों को समझने से पहले हमें प्राकृत जीभ भी सीखनी चाहिए। वो भी मैं सिखाऊंगी कि प्राकृत जीभ का रंग कैसे होना चाहिए, उसका आकार कैसे होना चाहिए, और प्राकृत जीभ पर कितने कितने प्रमाण में सलाइवा होना, श्लेष्मादिक्य का होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीभ ये बोधक कफ का स्थान है, यानी कफदोष जीभ पर हमें ज्यादा मिलता है। अब जब कफदोष होता है तो कफदोष से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, यानी कि जैसे कफ का मल है, रस धातु या बाकी धातुओं के साथ कफदोष का जो कनेक्शन है, जैसे रस धातु के साथ साथ मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इन सभी से जुड़ा है। तो क्या हम इन सभी धातुओं की बीमारी को भी जीभ के जरिए पहचान सकते हैं क्या? जैसे जीभ को अन्न व स्रोतस का आईना माना है, टंग इज द मिरर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरे क्लासेस में, योर फेस नेवर लाइज, आपका चेहरा झूठ नहीं बोलता। जो भी भावनाएं हैं, मन में दुख है, खुशी है, जो भी मन में मन की स्थिति है, वो आपके चेहरे से पता चलती है। इन द सेम वे योर टंग नेवर लाइज, आपकी जबान झूठ नहीं बोलती। यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पेशेंट की जबान झूठ नहीं बोलती है। अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा डाइजेशन तो अच्छा है, आई एम ओके, आई एम फाइन, मेरा पेट ठीक से साफ हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसके जीभ के जरिए पता चलेगा कि क्या खराबी है। जीभ सब कुछ बता दी। तो नैरो टंग, अब इस पर क्रैक्स होते हैं अलग अलग प्रकार से, कभी कभी पेल होती है, अनइवन होती है बहुत। लाइक अभी आप जाकर आईने में, या अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैं लाइव भी आपका यहाँ पे जीभ देख सकती हूँ। टंग डायग्नोसिस, कोई इंटरेस्टेड है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। आप जाकर क्लास के बाद अपनी जीभ को देखिएगा, और जितने लोगों की जीभ का जो बॉर्डर है अगर वो अनइवन है, इरेगुलर है, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। इसके भी कई सारे रीजंस होते हैं। इरेगुलर बॉर्डर्स क्या है? बहुत सिंपल सा लक्षण है। मुझे बिल्कुल 100% आई एम श्योर दैट 80% ऑफ द पीपल मे हैव दिस इरेगुलर बॉर्डर्स। और ये बहुत कुछ बताते हैं। केवल इरेगुलर बॉर्डर के जरिए आपको उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति का भी अंदाजा आता है। जी, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, ओके। और भी आपको कुछ अंदाजा है तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। तो वात की जीभ कैसी होगी, पित्त की जीभ कैसी होगी? द टंग विल टिपिकली बी अ लिटिल स्क्रैची, ड्राई, थीनर, पतली, क्योंकि वायु लघु है, रुक्ष है। तो वातदोष की जीभ तो थोड़ी सी रूखी होनी ही है, ड्राई होनी ही है। वहां पे कफ का या श्लेष्मा का, सलाइवा का प्रमाण निश्चित रूप से अगर आप कंपेयर करते हो तो वो कम मिलेगा। पित्त दोष, जैसे कि पित्त ये मध्यम प्रकार का दोष है, इसका जो प्रधान महाभूत है वो तेज महाभूत है। सो मीडियम साइज की, स्लाइटली ड्राई एंड सिग्निफिकेंटली रेडल, बिल्कुल। वात और कफ से ज्यादा अगर रेडनेस मिलेगा तो वो आपको मिलेगा पित्त दोष के जीभ में, यानी गुलाबी रंग। आपके जीभ से आपके रुग्णों के हीमोग्लोबिन के बारे में भी पता चलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे क्लासेस में मैं जीभ देखकर ही हीमोग्लोबिन काउंट बताती हूँ, एंड ये 95% मैच होता है। आई वुड लाइक टू से एस्ट्रोलॉजी भी 70% मैच करती है। एस्ट्रोलॉजी जो बताते हैं वो भी 75% तक ही उसकी एक्यूरेसी होती है, बट आपकी जीप 95% के ऊपर रियल बताते। आप पैथोलॉजी रिपोर्ट भी देखेंगे तो वहां पे नीचे लिखा होता है प्लीज कोरिलेट विद द क्लिनिकल सिम्टम्स। तो वहां पे भी 100% का गारंटी नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो इसी प्रकार से कफ की जीप फूलर, बड़ी सी जीभ बाहर निकालते ही पता चलेगा आकार बड़ा है, लार्जर, फूलर। क्यों बड़ा है? क्योंकि जीभ कैसे बनी है? कफ शोणित मांस के सार भाग से। कफ धातु का मांस धातु के साथ आश्रय से संबंध है। तो कफ के सारे शारीर भाव, अंग ये फूलर होते हैं पृथ्वी महाभूत के कारण। फूलर, लार्जर, पॉसिबली लाइट पिंक, मॉइस्चर होगा बिल्कुल, क्योंकि श्लेष्मा ही यहाँ पे प्रधान है। तो क्यों नहीं होगा? जीवा का परीक्षण करते समय क्या क्या देखना है? सबसे पहले आकार, देन
कलर कलर बहुत ही एक बहुत ही विस्तारित रूप से का ये टॉपिक है। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण बताती हूँ मैं, अगर किसी की जबान का रंग नीला है, नीला रंग यानी क्या समझेंगे बताइए सृष्टि जी? नीला रंग क्या बताता है? यानी कहीं ना कहीं किस तत्व की अधिकता है और किस तत्व या कौन से दोष की विकृति है? बताइए मुझे। जीभ का रंग, अलग अलग रंग होते हैं, पीला, नीला, साइनोसिस। ओके, करेक्ट जी। और कौन सा वायु, कौन सा दोष दुष्ट है यहाँ पर? बताइए मुझे। साइनोसिस के साथ कौन सा दोष आएगा यहाँ पर? किस वायु की विकृति है? शरीर में रक्त की आपूर्ति करना किस दोष के किस प्रकार का कार्य है? जी, वात दोष का। वात के किस प्रकार का? आयुष जी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी बताइए किस प्रकार का? करेक्ट सोलंकी जी। जी, व्यान वायु। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको क्या अंदाजा आ रहा है कि रस संवहन, सर्कुलेशन, व्यान वायु की विकृति यानी वातदोष की विकृति है क्या? बिल्कुल। रंग, कोटिंग, कोटिंग केवल आम साम निराम इतनी लिमिटेड नहीं है। कोटिंग का भी रंग होता है, एक पीली कोटिंग हो सकती है। मैं कुछ चित्र आगे बताऊंगी जो रियल पिक्चर्स है, और इसके जरिए आपको पता चलेगा कि ये क्या होती है। सूजन है क्या? दांतों की निशान है क्या? जीभ को देख अंग के स्वास्थ्य, वात, पित्त, कफक, असंतुलन हमें पता चलता है। विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति और टॉक्सिन्स। और आपको बताऊं मैं, टॉक्सिन्स कौन से अंग में है ये भी हमें पता चलता है। आपकी भावनाएं, आपकी मानसिक स्थिति का अंदाजा भी जीभ के जरिए होता है। थायराइड जैसी बीमारियों के बारे में भी हमें पता चलता है। रक्ताल्पता, पोषक तत्वों का कुअवशोषण यानी माल एब्सॉर्प्शन, परजीवी संक्रमण, शरीर में सूजन, इस प्रकार से कई रोगों के बारे में हमें जीभ से पता चलता है। ये 6 टेस्ट है, हमें जीभ पर अलग अलग एरिया पर टेस्ट सेंसेशंस मिलते हैं, टेस्ट बर्ड्स के कारण, रसांकुर, स्वादांकुर के कारण। इसकी भी एक स्टोरी है। जैसे कि टिप ऑफ द टंग, यहाँ पे हमें मधुर रसलिप टेस्ट का नॉलेज होता है। इसका कनेक्शन मैं आगे बताऊंगी कि कैसे इसके जरिए भी आप निदान कर सकते हैं कौन सा एरिया और कौन से एरिया में। जैसे कि आप मान लीजिए टिप ऑफ द टंग है जो कि हमें मधुर रस का ज्ञान कराता है। अगर टिप ऑफ द टंग पर आपको बहुत ज्यादा क्रैक्स मिल गए, ये क्रैक्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं ये भी मैं शेयर करूंगी आपको। क्रैक्स, क्रैक्स पता चलता है सभी को, क्रैक्स क्या है, किस दोष के कारण होंगे क्रैक्स? ये क्रैक्स का पूरा मेरे 2 दिन का लेक्चर रहेगा। जीभ पर अलग अलग प्रकार की क्रैक्स। आई होप कि मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर है। जी, दरार, करेक्ट करेक्ट। तो ये इसको मैं कलर भी ये करूंगी जस्ट फॉर। जी, तो ये देखिएगा इस प्रकार से दरारें, जैसे टीप पर। अब टीप ये एक्चुअली कफदोष का स्थान है, और अगर इस जगह पर आपको दरारें मिल रही है तो क्या पता चलता है बताइए? ये दरारें, स्थान कफ का है, मधुर रस का ज्ञान होता है, और अगर यहाँ पे रुक्षता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या प्रश्न रहेगा आपको? पेशेंट को आप क्या पूछेंगे बताइए? यस, अगर समझ रहे मेरी बात को सभी लोग, मनीष जी, कोथुले जी, आरती जी, समझ रहे मेरे प्रश्नों को? अर्चना जी, कि इस टिप पर, जी, तो इस टिप पर अगर इस प्रकार का रूखापन, दरारें, क्रैक्स, फिशस के जैसे कुछ खुरदरी सी टंग मिल रही है, क्या टंग का खुरदरापन प्राकृत है? इज इट नॉर्मल सृष्टि जी? इज इट नॉर्मल? नो, करेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे? बताइए क्या होगा यहाँ पे, किस दोष की विकृति होगी? जी, वात दोष की, पित्त की। ओके, ठीक है, वात दोष की, सुनैना जी करेक्ट, वात पित्त। ओके जी, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हमें रस, उसका कनेक्शन और उसके कार्य और जीवा के साथ कनेक्शन, यानी केवल रस का ज्ञान कराना इतना ही लिमिटेड नहीं होगा। इसके जरिए हम
अपने डायग्नोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। ये कैसे जाना है ये भी हम आगे आने वाले समय में सीखने वाले। सो इतने सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। इस हर एक पॉइंट पर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। साइज, शेप, टिप, विड्थ, थिकनेस, कलर, टेक्सचर, प्रोजेक्शंस, फीचर्स एंड कट्स, कोटिंग, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और कुछ भी अलग सा हो तो वो सारा भी आपको सिखाया जाएगा। जैसे अभी मैंने कुछ आपको रेफरेंसेस दिए थे। सो आचार्य नागार्जुना हैज explained that in Vata dosha प्रकोप जीवा becomes शीत, खर एंड स्फुटित। तो सिंपली जीभ को देखकर, अगर जीभ स्फुटित है, जैसे मैंने क्रैक्स का बताया था, तो खर है, शीत है, तो हमें पता चलना चाहिए कि शरीर में वातदोष बढ़ा है। तो आपका डायरेक्शन कहा जाएगा, पेट साफ होता है क्या, मल की प्रवृत्ति कैसी है, कहाँ पे दर्द है क्या, वात प्रधान जो भी लक्षण होते हैं उस तरफ में हमारा डायरेक्शन जाएगा। यानी आप देखिए, सोचिए आपके क्लिनिक में आप बैठे हैं और आपने नाड़ी देखी, उसके बाद आपने जीभ का परीक्षण करना शुरू कर दिया। जीभ के जो भी सारे ऑब्जर्वेशन है ये आपके आगे के क्वेश्चनिंग का डायरेक्शन बदल देगा। पित्त दोष में क्या होगा, कफ दोष के प्रकोप में श्वेतता, पिच्छिलता ज्यादा रहेगी। आचार्य वाग्भट हैज मेंशन्ड दैट इफ अ चाइल्ड हैव एनी डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट when the child beats his or her own tongue। ग्रह बाधा में अलग अलग प्रकार के टंग के लक्षण मिलते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगी, आपकी जीभ ना, आपके प्री डायबिटिक टंग एक मेरा खास इसमें विषय रहेगा कि डायबिटीज की टंग कैसी रहती है। और ये हमारे आचार्य ने ही बताया है, वहां के ही रेफरेंस के साथ मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल ये मेरा मन का नहीं है। इन प्रमेह पूर्व रूप देर इज अ थिक कोटिंग ऑफ द टंग। तो बिल्कुल अभी आप समझिएगा इस बात को कि प्रमेह किस प्रकार का व्याधि है, संतर्पणजन्य व्याधि है। अग्नि की स्थिति क्या होती है, कफ, यहाँ पे तीनों दोष होते हैं प्रमेह में, बट प्रधानता किस दोष की होती है, कफ दोष की प्रधानता होती है। तो इसीलिए प्रमेह के पूर्ण रूप में आपको थिक कोटिंग मिलेगी टंग पर, जीभ पर। सो सिंपली, इन सिंपल लैंग्वेज में, वात इम्बैलेंस में फर्स, फिशर्स, क्रैक्स, स्कोल प्रडंग, डिप्रेशन बिहाइंड द टिप, पित्त में स्वेलिंग, रेडनेस, अल्सर। देखिए ये सिंपल से लक्षण है, इसमें कुछ मैं डिफरेंट नहीं बता रही हूँ। हमें इतना बेसिक नॉलेज तो है कि वात के प्रकोप के साथ क्या लक्षण मिलता है, पित्त के इम्बैलेंस के साथ क्या लक्षण मिलता है, कफ के इम्बैलेंस के साथ क्या लक्षण मिलता है। कफ के इम्बैलेंस के साथ सूजन, सोलन टिप विथ नॉर्मल कलर, सोलन टिप बिटवीन टिप एंड सेंटर, व्हाइट स्पॉट्स, कॉफीनेस, श्लेष्माधिक्य का, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। कफ की अधिकता है तो सलाइवा टपकता रहेगा, लार बहती रहेगी। मुख खोलता है तो लार आएगी, तो समझना है कि शरीर में कफ दोष बढ़ा है। तो ऐसा किस किस व्याधियों में संभव है। सोलन, रेड टीप या टंग ये है तो हमें क्या समझना है, किस टाइप का ये व्याधि होगी, कहाँ पे हमारा डायरेक्शन जाता है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ हमें ये सारे रेफरेंसेस है टंग के बारे में। सो सिंपली, watery tongue, कफ डिसऑर्डर, फ्यूजन बीटर सेंसेशन विथ रेड, चेरी रेड कलर टंग, पित्त एग्रीवेशन, ड्राई टंग, वात डिसऑर्डर्स। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ मैं आपको एक आज के सत्र में मेरा एक खास जो ये है उसके बारे में मैं सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड। जस्ट अ मिनट। जी, यस। सो चलिए मैं आज आपको आज के डेमो वेबिनार में आपको बेसिक चीजें बताती हूँ चित्र के जरिए। ये हमारी टंग की पिक्चर है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ दोषा। दोषों के लोकेशंस यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस टंग। टंग को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 हिस्सों रेड पेन के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमने, प्लीज आप मत लिखिएगा कोई भी व्हाइट बोर्ड पर। सो ये हमने डिवाइड किया टंग को 2 हिस्सों में, तो ये आगे 3 पार्ट्स। ओके, सो प्लीज आप मत लिखिएगा कोई भी यहाँ पर, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है।
आई रिक्वेस्ट। तो ये जो पहला हिस्सा है, द फर्स्ट पोर्शन, यानी अभी जैसे मैंने बताया था टिप पोर्शन, एंड दिस टिप पोर्शन ये है हमारे कफदोष का एरिया। दिस इज द लोकेशन ऑफ कफदोषा, यानी कफदोष की बीमारियों को हमें जीभ पर देखना है तो कहां पर देखना है? ऑन द टिप पोर्शन। सृष्टि जी, आरती जी, तो पहला हिस्सा ये कफदोष का हिस्सा है। अब जैसे कफदोष आता है, बिल्कुल कफदोष कौन से महाभूतों से बना है? सो द पांचभौतिक जोन, द त्रिदोषिक जोन्स फॉर कफदोषा, एंड दिस फर्स्ट जोन which is representing the kapha that means there is a dominance of jala and prithvi mahabhut. Are you getting my point? Astha ji, Aarti ji, are you getting my point? So बिल्कुल ये पृथ्वी और जल महाभूत का बना कफदोष, पहले हिस्से में हमें कफदोष को ज्यादा प्रोमिनेंटली देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच वाला हिस्सा, द मिडल पोर्शन, कफ काम क्या करता है, फिर कफ के संयोग कार, बल कार्य, स्थिरता, स्थैर्य, उपचय, संयोग, बहुत सारे कफ के कार्य है। कफ का बाकी धातुओं के साथ रिलेशन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा रहेगा इसमें, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा आई एम श्योर। जीभ के जरिए हम, जैसे मैं दोषों का बता रही हूँ, वी कैन कनेक्ट द धातु ऑल्सो। हम धातुओं को, इवन दो हम धातु सार में, एक मेरा ये टॉपिक पर मैंने कुछ रिसर्च किया था, इसमें मैं बताऊंगी कि धातु और धातु सारता को, धातु सारता शब्द आपने सुना होगा, द एक्सेलेंस ऑफ द टिश्यू, धातु सारता विशुद्ध तरु धातु, एंड द एक्सेलेंस ऑफ द टिश्यू, जिसके ऊपर कम, बहुत ही कम हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर धातु सारता को पहचानना कभी बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है, बट यहाँ पर जीभ के जरिए मैं प्रयास करूंगी निश्चित रूप से। आई विल गिव माई बेस्ट 101%, मैं इसमें आप मेरा पूरा दूंगी। एंड बिल्कुल, तो दिस मिडल पोर्शन, ये मिडल पोर्शन हमें देखना है, द पित्त दोषा, तेज महाभूत, यानी ये मिडल पोर्शन, पित्त का काम क्या है बताइए शरीर में? आस्था जी बताइए, पित्त दोष क्या क्या काम करता है? कैन यू मेंशन इन द चैट बॉक्स प्लीज? जस्ट थोड़ा रिवाइज करिएगा बेसिक नॉलेज को। दिव्या जी, चंद्रिका जी, डॉक्टर प्रज्वल, डॉक्टर सोलंकी जी, इफ यू आर कंफर्टेबल, पित्तम पंक्ति, यस, दर्शनम जी, प्लीज जस्ट मेंशन। और ये देखिए, हमें बहुत बेसिक लगता है, बट ये बेस ही हमें, हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद का कोई प्रैक्टिशनर दुनिया भर में वात पित्त कफ छोड़ के, धातु को छोड़ के, पंचमहाभूतों को छोड़ के कुछ कर सकता है। सो इस बेस के साथ हमें चलना ही होगा। पाक करेक्ट, उष्मा, दर्शनम जी बिल्कुल, पाचन करेक्ट, और कुछ? बिल्कुल। तो इन सभी, अभी आप समझिए तो सिंपली इन सभी फंक्शंस को ये प्राकृत हो रहे हैं। इस व्यक्ति का पचन कैसा है, पित्तदोष की स्थिति क्या है, क्या पित्तदोष बड़ा है, क्या पित्तदोष विकृत हुआ है, ये सब हम कहा देखेंगे? ऑफ कोर्स इन दिस मिडल पोर्शन, बिकॉज दे आर द रिफ्लेक्टिव organs, there are the reflective organs and they indicate the digestion, अन्नव स्रोतस। आपको एक आश्चर्यकारक जानकारी दूंगी, जीभ, टंग एक ऐसा अंग है, ऑर्गन है, आप अपने अंगों को देखिएगा, सर से पांव तक, हम सारा ये स्कैनिंग एंड ऑल थिंग्स वी डू रेगुलर, बट हम अपने शरीर के किसी अंग को बाहर निकाल सकते हैं, दैट ऑर्गन इज वन एंड ओनली जीभ, जिह्वा, टंग। अरे रे, कौन कर रहे हो, प्लीज मत करिए। सो टंग ये एक ऐसा ऑर्गन है, वी कैन शो इट, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, आ करके जीभ को एक्सटेंड कर सकते, एंड बाय एक्सटेंडिंग दिस ऑर्गन, दिस इज द वन एंड ओनली इंटरनल ऑर्गन विच वी कैन एक्सटेंड, हम अपने शरीर के बाहर निकाल कर, क्योंकि हम जीभ का परीक्षण करेंगे तो जीभ को मुख से बाहर निकालेंगे ना, तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं। और कभी भी टंग को 20 सेकंड से ज्यादा एक्सटेंड मत करिएगा, 20 सेकंड तक ही
हमें उसको ऑब्जर्व करना है, फिर थोड़ा सा गैप देकर फिर 20 सेकेंड के लिए द गुड लाइट इज रिक्वायर्ड, और वी कैन गो विद द हेलोजन बल्ब, हेलोजन लाइट आप यूज कर सकते हैं टंग मैपिंग के लिए। ये पूरा तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। सो दिस मिडल पोर्शन ये पित्त दोष के स्थिति को बयां करता है, एंड द लास्ट एंड पोर्शन ये बयां करता है हमारा प्रिय दोष, जो दोषों का महानेता है, बॉस है, बिग बॉस, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दिस बिग बॉस इज, बताइए, ऑफ कोर्स वायु, वात, वायु तंत्र यंत्र दरहा, बिल्कुल। तो ये वात बिग बॉस जिसको हम देखेंगे इस जीप के लास्ट पोर्शन। सो इस प्रकार से एक बेसिक आज मैंने आपको बेसिक आपको बता रही हूँ कि रफली कि कहाँ कहाँ इतने इंटरेस्टिंग वे से हम सिंपली कुछ नहीं। देखिए आपको मैं बताऊं, आपके क्लिनिक में आप ये एक इस प्रकार के नैदानिक एग्जामिनेशंस को अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। अपने स्किल्स को बढ़ाकर एक अट्रैक्टिव वे से आप प्रेजेंट करेंगी तो आप इसके जरिए डायग्नोसिस भी कर पाएंगे, और आगे आपकी जो ये होती है ना, लाइक पेशेंट्स का आपका सोर्स बढ़ेगा, आपका जो ये होगा, आपकी फीस होगी या आपका जो भी अर्निंग होगा वो भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस स्पेशल टंग डायग्नोसिस, टंग मैपिंग आप अपने क्लिनिक में समाविष्ट करिएगा, एंड आप इससे आगे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये इस टंग डायग्नोसिस की खासियत है। आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, बस देखना है और ऑब्जर्वेशंस करना है। ये ऑब्जर्वेशंस आप धीरे धीरे सीखेंगे, और एक झटकी में, मतलब जैसे मैंने बताया कि 20 सेकेंड में ही आप अपने रुग्ण के जीव का परीक्षण करके दोषों की स्थिति, धातुओं की स्थिति और व्याधि की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। इतना ये सिंपल और इजी टेक्निक है। सिर्फ दर्शन परीक्षा इसमें आपको करनी है, नथिंग एल्स। दर्शन के ही जरिए हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। आगे कुछ मैं और जीप के पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, एंड सो ये आपको फुल तरीके से समझ में आएगा कि अलग अलग पिक्चर्स जो अभी मैंने बताया था। जीप को हमने 3 क्षेत्रों में, 3 हिस्सों में बांटा। जो सामने का 1/3 भाग है ये कफ का स्थान है, मध्य का स्थान ये पित्त का, एंड पीछे का 1/3 स्थान ये वात का है। सो यह विभाजन शरीर के त्रिदोष संतुलन को संकेत देता है और रोग पहचान में हमें सहायक होता है। सो दीज आर द दोषित जोन्स। आज आपने सीखा, आपको पता था पहले सृष्टि जी और सभी डॉक्टर्स, बताइए ये जोन्स आपको पता थे पहले? नहीं, तो आज आपने सीखा, एक नया कुछ सीखा आपने, नई कुछ लर्निंग हो गई आज आपको इस सत्र के साथ, बताइए मुझे। जी मनीषा जी, बिल्कुल, तो आज आपने सीखा ये, अच्छा लगा आपको? महेश जी, मनीषा जी, सृष्टि जी, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? आज जो भी आप इस टंग मैपिंग के सत्र से सीख रहे, आई होप दैट इट्स इंटरेस्टिंग एंड एक्सक्लूसिव। आपने कभी सुना नहीं होगा, बट आज के बाद आप जीभ के परीक्षण को एक अलग अंदाज से देखेंगे, सीखेंगे। साइज ऑफ द टंग ये भी ग्रंथोक्त रेफरेंस है, ये हम आगे आने वाले टाइम पे और डिटेल सीखेंगे। सरफेस ऑफ द टंग, अति तनु, खर जीवा, बहुत सारे हैं। देखिए हमने कभी ना अपने संहिताओं को ठीक से पढ़ा नहीं होता है, हम बस वो हमारा रूटीन प्रैक्टिस जो होता है उसके ही इस पर चलते रहते हैं, हम उसमें ही अटके रहते हैं। हमें अगर कुछ अपने प्रैक्टिस में चार चांद लगाने हैं, हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपने आप को आगे ले जाना है ज्योत्सना जी, तो बिल्कुल हमें कुछ नया सीखना होगा। आज की जरूरत है। आज ना आपके पास रुग्णों की भीड़ लग जाएगी अगर आप इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे से, क्योंकि लोग आज, सबसे पहले आपको पता होगा सोशल मीडिया पर जो भी बिजनेस मॉड्यूल्स है उन सब में सबसे ज्यादा हेल्थ को लेकर लोग इतने ज्यादा पजेसिव, इतने ज्यादा बेचैन है ना। हर कोई चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी बीमारी मुझे पहले पता चले तो शायद मैं कंट्रोल कर पाऊं। जैसे हम शतक्रिया काल को पढ़ते हैं, चय एवं जयेत दोषम,
चय अवस्था में ही दोषों को जीतना, बिल्कुल। तो क्यों ना हम टंग डायग्नोसिस के जरिए आपके रुग्णों की स्थिति बता दी जाए, उनको पहले ही बता दी जाए विटामिन डिफिशियंसी है या अग्निमांद है, कुछ अलग स्थितियां है। तो क्या आप अपने रुग्णों को, जैसे ये एक बोनस भी होता है, आप आपके पास मान लीजिएगा कि कोई पेशेंट आया है एनीमिया की ट्रीटमेंट, आप एनीमिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपने उनको उनका परीक्षण करना शुरू कर दिया और आपने फिर जीप देखी और आपको पता चला कुछ अलग और पता चला कि भाई मुझे ये लग रहा है, तो आप केयर कर लीजिएगा, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिएगा, डाइट चेंज करिएगा, इस प्रकार से मैं आपको देता हूं। तो सोचिए आप, पेशेंट आपका कितना खुश हो जाएगा कि डॉक्टर सृष्टि जी, डॉक्टर वर्षा जी कितनी अच्छी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे ये एक एडिशनल सारी बातें बता दी। एंड नाउ आई एम अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी पैटर्न, आई एम अवेयर ऑफ माई दोषिक स्थिति। सो कई सारी चीजें आपको पता चलेगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात भी है, ब्लैक टंग, आप में से किसी की ब्लैक टंग है, काली जबान? बताइए सृष्टि जी, काली जबान को लेकर कुछ बातें आपको पता है? काली जबान ये मानी जाती है, बताइए एनीवन? संगीता जी, डॉक्टर योगेश जी, यस एनीवन? ब्लैक टंग, इज इट नॉर्मल, इज इट ओके? काली जबान होना नॉर्मल है? जी बताइए, ज्योत्सना जी, ओके, मोहम्मद जी, स्वाति महात्रे जी ओके, सृष्टि जी, नो, नॉर्मल नहीं तो क्या है बताइए, छवि जी, आयुष जी, संगीता जी, वात के कारण, ओके, आपका अंदाजा ठीक दिशा में जा रहा है। यस, यस करेक्ट मोहम्मद जी। जो काली जबान होती है वो जो बोलते हैं वो सच होता है, ऐसा हमने भी सुना है बचपन से। आई डोंट नो। ब्लैक टंग जी, टॉक्सिसिटी, ओके। तो कुछ लोग इसके साथ होते हैं एंड दे बॉदर वेरी मच अबाउट दिस ब्लैक टंग, बट एक्चुअली इसके भी कुछ कारण होते हैं। कभी कभी ये कंजेनाइटल होता है, कभी कभी ये धीरे धीरे कम हो जाता है। हम इसमें गंडुश ऑयल पुलिंग जैसे थेरेपीज कर सकते हैं जी। तो पित्त का शमन, कवल गंडुश चिकित्सा, ऑयल पुलिंग से हम ब्लैक टंग को कम कर सकते हैं। तो ये भी कलर्स के इसमें आएगा, किस प्रकार के मूवमेंट्स। क्या आपने कभी सोचा मूवमेंट्स, लीजर टंग, लीजर चिपकली कैसे चलती है, कितना मतलब चिपकली को देखते ही हमें ऐसे लगता है ना, बाप रे कितना मूवमेंट डिफरेंट होता है, खराब लगता है। कभी कभी बहुत लोगों को चिपकली से डर लगता है, भाग जाते हैं लोग, घर में चिपकली है, रूम में चिपकली है तो दूसरे रूम में चले जाते। द लिजर्ड टंग, जिह्वा वेपनम, कहाँ पे होता है? रोमैटिक कोरिया, तृष्णा, दाह जैसी स्थितियों में इस प्रकार की टंग होती है। कितना जी सृष्टि जी, बिल्कुल। मूवमेंट्स, स्तब्ध जिह्वा, इमोबाइल टंग, पैरालिसिस जैसे बीमारियों में इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है। सो स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है टंग डायग्नोसिस का, ये आप अभी यहाँ पे मैंने फोटो शेयर किया है। नाउ आपकी बारी है, एंड मैं आप सभी के 95 पीपल आर देयर इन द मीटिंग एंड इट्स अ गुड नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। और अब मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि ये जीप का परीक्षण आप करके चैट बॉक्स में लिखिएगा। And now your time starts. Please make it fast. Please. Yes, फटाफट फटाफट उत्तर आने चाहिए, क्या क्या है इस जीव में, क्या क्या है बताइए, सृष्टि जी, संगीता जी, ज्योत्सना जी करेक्ट, कथुले जी, साम जीवा बता दुष्टि, वात दोष, महेश पवार जी ओके, स्वाति जी, साम, नयंतिका जी पित्तवात, मनीष जी लेफ्ट कफा, जॉन्डिस वात एंड पित्त दुष्टि, indigestion ओके, यस, एनी मोर, liver problem योगेश जी ओके, यस प्लीज, साम गृहिणी, वात पित्त, उष्ण पित्त कॉन्स्टिपेशन, लीवर प्रॉब्लम ओके। अब थोड़ा ये देखिए ना, अभी शुरू कहाँ से करना है, साइज पर आकार देखिए ना पहले आप, आकार देखिए, आकार बताइए पहले, आकार, कलर,
क्रैक्स है क्या, देखिए कितने क्रैक्स दिखाई दे रहे, कितनी गंदी जीभ है ना। गंदी इन द सेंस दुष्टी। जी, फिशर्ड, बिल्कुल। तो ये फिशर्स क्या बताते हैं, यू वॉन्ट बिलीव। आपका एक्सरे, एमआरआई भी फीका पड़ेगा, बट मैं आपको एक ऐसा टेक्निक सिखाऊंगी जिसके जरिए जीभ देखते ही कहाँ पे अस्थिक क्षय है, डिजनरेटिव चेंजेस है, बोन मिनरल डेंसिटी लॉस है, स्पॉन्डिलाइटिस, एक आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक मेन डिसऑर्डर। लोग कंप्यूटर में बैठे, मैं कंप्यूटर में बैठती हूँ दिन भर, आप सभी बैठ रहे, मुझे देख रहे, क्लास सुन रहे, इसका परिणाम आपके गर्दन पर, पीठ पर होने वाला है। स्पॉन्डियोलाइटिस एक कॉमन विकार, इसको आप विद इन 30 सेकेंड, माई चैलेंज, 30 सेकेंड में आप चुटकियों में जान जाएंगे पेशेंट को कहाँ पे पेन है। आज पेन मैनेजमेंट सबसे बड़ा, लोग भाग रहे, दौड़ रहे, नेचुरोपैथी, ये पैथी, कायरोप्रैक्टिस, ये टेक्निक, वो टेक्निक, लाइन लगी है। 100 पेशेंट्स होते एक नेचुरोपैथी क्लिनिक में। बोन सेटिंग, ये सेटिंग, कहाँ से आ गया इतना सब, अभी अभी आया, क्यों आया, लोग परेशान है पेन से। मोर वाटरी कोटेड नॉन ओके, पेन से लोग परेशान है, ये पेन कहाँ पे है और क्या करना है आगे, आप चुटकियों में बता पाएंगे जब आप इस टंग मैपिंग की टेक्निक को सीखेंगे। रंग के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं, सृष्टि जी, कोटिंग किस रंग की है, बताइए, फास्ट, मेक इट फास्ट। कोटिंग येलो कलर, तो येलो कलर कौन से दोष का है, तो येलो कोटिंग अगर होती है तो क्या है, और व्हाइट कोटिंग होती है तो क्या समझेंगे, किस दोष की बीमारी। स्वाति जी, फटाफट फटाफट। जी, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, पित्त, व्हाइट कफा, जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आपको आपने नोटिस किया, आप बॉर्डर्स को भूल रहे, मैंने बहुत फोकस करके बताया था कि बॉर्डर्स को देखिए। बॉर्डर्स कैसे बताए, रेगुलर है इरेगुलर है, एके जी, आयुषी जी, इरेगुलर, तो कौन सा दोष, बॉर्डर्स इरेगुलर, कौन सा दोष क्या होगा। यस यस, फास्ट, मेक इट फास्ट, फटाफट, आपके आंसर्स आने चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड लर्निंग शुड बी इन द टू वे, दोनों तरफ से होनी चाहिए लर्निंग हमेशा। बात करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बात इंक्रीज, ज्योत्सना जी करेक्ट, बिल्कुल मोहम्मद जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, अब थोड़ा ये चित्र जरा खराब है, आपको विचलित कर सकता है। It's बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये जीभ है, पूरी जीभ देखिए कैसे उबड़ उबड़ धाबड़ हो गई, इट्स पूरी टोटली डिस्ट्रक्टेड टंग है। एंड कैन यू इमेजिन विच दोषा इज दैट, कोतुले जी, प्रांजल जी, पाक, ओके फटाफट, रेडिश भाई, सोमवीर सिंह जी, संगीता जी, वात, पित्त, ओके, देखिए ना कैसा, मतलब पूरा जो एक संगठन होता है जीभ का, वो सारा बिखर गया है, फूल गई है, फूलर, थीकर, उबड़ी सी दुबड़ी सी ये जीभ है। मांस रक्त दृष्टि, स्कैटर्ड, करेक्ट, वात पित्त, स्वाति जी, ओके, वर्षा जी, मांस रक्त दृष्टि, करेक्ट, और कुछ छवि जी, वात पित्त, ठीक है। अब इसमें सेंटर में फीचर दिख रहे हैं ना, बड़ा सा एक ऐसे डीप है, डीप एकदम सेंटर में डीप फीचर है, डीप कट है, क्या है ये, रक्त दृष्टि, ओके। हाँ, आपको बताऊं मैं, ये कॉमन बीमारी, बहुत ही कॉमन, डीप फीचर, क्या बता रहे हैं, डीप फीचर, फीचर यानी क्या, कौन सा दोष, whenever there is a feature, हम कौन से दोष को कंसिडर करेंगे, कैन यू आंसर, कैन एनीवन आंसर, ओके, जी करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, देखिए आप समझ रहे चीजों को, मैंने केवल अभी 40 मिनट्स लेक्चर दिया है, तो आप इतने सुंदर तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे, तो आप सोचिए अगर आप पूरा सीखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन लग जाएगी आंसर देने की, कि
अच्छे से कौन बता सकता है? आज मैंने केवल आपको, पद्मश्री जी, केवल 40 मिनट्स हो गए, 50 मिनट्स हो गए लेक्चर शुरू करके, और आप चीजों को समझ रहे है ना। तो अगर आप इसको पूरी तरीके से एक मॉड्यूल के रूप में सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाए। बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस एनहांस करने का मौका ये सत्र देता है। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करें, अपने सिद्धांतों को अच्छे से समझे, अपने जो बेसिक्स है अष्टविध परीक्षा निदान की, हम उनको भूल ही गए। हम ना इतने डिपेंडेंट हो गए इन्वेस्टिगेशंस, हर कोई इन्वेस्टिगेशंस पर डिपेंड होता है। बट सच में बताऊं तो ज्यादा स्किल, ज्यादा सुख डॉक्टर को, वैद्यों को अपने डायग्नोसिस से मिलता है कि अरे ये मैंने अच्छा डायग्नोसिस किया, मेरा करेक्ट था निदान। रिपोर्ट के साथ तो कोई भी डायग्नोसिस कर लेगा, बट उसमें स्किल क्या है? आपको स्किलफुल प्रैक्टिस करनी है, तो इस प्रकार के टेक्निक्स आपको सीखने हैं। नाड़ी परीक्षा है, जीवा परीक्षा है, मेरे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मल परीक्षा भी की जाती थी। हमारे कुछ वैद्यराज थे जो मल परीक्षा करते थे। आज बहुत कम वैद्य हैं जो मल की परीक्षा करते हैं। आज मूत्र परीक्षा हम आयुर्वेदिक तरीके से कहा करते हैं, पस सेल्स, या फिर क्लियर है क्या, कलर क्या है, वॉल्यूम, बस हो गई। कहाँ हम पंचभौतिक तरीके से मूत्र की परीक्षा करते, नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हमारे क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू अस, हम सबसे जुड़ी, हमारी रूह से जुड़ी, क्योंकि हम इसका उपयोग करके बोलते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने न जाने दिन में कितनी बार, सॉरी टू से, बट मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस बोलना चाहूंगी। चंद्रिका जी, महाराष्ट्र से कुछ लोग होंगे या आपके यहाँ पे भी अलग अलग प्रांतों में भी ये बोला जाता है, जबान संभाल के बात करो। आरती जी, ये सुना है आपने? जबान संभाल के बात। क्यों जबान, क्यों इतना महत्व जबान को? शब्द ये शस्त्र है, जबान पे लगाम दो, जबान पर मीठा और माथे पर ठंडा होना चाहिए, यानी जबान में मिठास। क्यों जबान में मीठा जरूरी है? कोई तीखा बोलता है तो क्यों हमें चुभता है, और कोई मीठा मीठा बोलता है तो क्यों हमें अच्छा लगता है? यानी शब्द ही हमारे एक ट्रीटमेंट का जरिया है। शब्द चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, आज पूरी दुनिया में इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को आजमाया जा रहा है। और हम, हमारे पैथी में ये बातें हैं, बट हम तो बस मॉडर्नाइजेशन के इसमें चले हैं और हम सब मॉडर्न टेक्निक्स सीखते हैं। यस, सब उधर बोला जाता है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और आपको कुछ आते होंगे तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा, जबान संबंधी, जीभ के संबंधी, कि जीभ कितनी एक एक जबान का शब्द लोगों को जोड़ता है, घरों को जोड़ता है और घरों को विभक्त करता है। हमें पता है ना कि शब्द का उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है, और शब्द जिवेला हार्ड नहीं, करेक्ट बिल्कुल, जिवेला हार्ड नहीं, यस, काली जुबान, ओके, वेरी नाइस। और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताइए प्लीज। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट, अगर आपके प्रश्न है तो, और मैं इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाली हूँ ये भी बता देती हूँ। सो बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगी टंग मैपिंग के, जो मैसेज में भी है। देन दोषिक जोन, पांचभौतिक जोन, धातु का जोन, फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द शेप, साइज, कलर, सब कुछ डिटेल में, क्रैक्स वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। देन वी विल गो फॉर द केस स्टडीज, इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। देन आई विल शेयर द चार्ट फॉर योर डेली रूटीन प्रैक्टिस। आप अपने क्लिनिक में इसको अप्लाई कर सकते हैं, टंग मैपिंग का। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप श्योरली अपने क्लिनिक में एक अच्छा सोर्स के जरिए भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार आपने सीख लिया, पेशेंट, मैंने बोला ना आपको कि पेशेंट उतावल है जानने की अपने शरीर के बारे में। हर कोई सर्च करता है गूगल पर, सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है हेल्थ के बारे में, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है लाइफस्टाइल के बारे में। आप जाइए यूट्यूब फैक्ट्री में, इंस्टा फैक्ट्री में जाइए, वहां पर क्या है, यही तो बेचा जा रहा है सब। और यहाँ पे आपको ये सीखने का मौका मिलता है इस टंग मैपिंग के कोर्स के द्वारा, जो 5 दिन का होगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ये सारा इसी का मैटर है कि हम कैसे कैसे सीखेंगे। ये भी कुछ पिक्चर्स ऐसे कई, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था टंग मैपिंग का, एक एप्लीकेशन हम बनवाना चाहते थे जिसमें काफी आगे तक हम लोग गए हैं। देखिए, आपको ना काम करने के लिए ये कोई भी छोटा सा विषय, जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी नहीं लगा था कि ये इस प्रकार से इतना बड़ा विषय बन जाए, और मैं इसको 5 दिन 7 दिन सिखा सकती हूँ, 1 घंटा में जीप पर बोल सकती हूँ। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और किसी को भरोसा भी नहीं होगा। बट आज आपने मुझे पूरा 1 घंटा सुना जीप के बारे में। हमने कभी, जो देखिए, जो हम सोचते नहीं वो हम कर सकते। ये आप भी इस प्रकार से अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे ऐसे चित्र और आपके रियल फोटोज ग्रुप में आएंगे, और हम इस सबको डिस्कस करेंगे। ये स्पॉट्स, टंग के स्पॉट्स, कहाँ कैसे, कितने स्पॉट्स स्पॉट्स है, किस एरिया पर है, तो क्या है, कितने इतने सारे पॉइंट्स है। बहुत सारे पॉइंट्स हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मंजू मैम से कि वो आगे का जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है क्लास के बारे में, वो। गुड इवनिंग एवरीवन। जी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसे आपको लगा मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, और मैं मतलब अभी वेट कर रही हूँ कि कब ये सत्र स्टार्ट हो जाए। बिकॉज रियल में मतलब एक टंग परीक्षण से, जीवा परीक्षण से हम कितनी सारी चीजें जान सकते हैं ना। और मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट, इसके लिए कुछ अलग मतलब कुछ अलग यंत्र चाहिए, राइट? जैसे हम स्टेथोस्कोप लेते हैं, बीपी एपेटस लेते हैं, कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना मैम की वर्कशॉप में हम सीख तो लेते हैं, लेकिन हम अरे ये चीज मंगवानी पड़ेगी, ये चीज खरीदनी पड़ेगी, है ना। एग्जैक्टली। ऐसा रुकने की नो जरूरत ही नहीं है, एक्सपेंसेस, इससे नो एक्सपेंसेस, इट्स नो एब्सोल्युटली एक्सपेंस। फ्री। यस। और इमीडिएटली हम अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हम आपने कहा कि आप अपने मतलब हम पूरा वेबिनार देखेंगे कि जूम मीटिंग पे ही हो सब पाए तो अच्छा होगा, ताकि हम जितने भी जन जुड़ रहे हैं इस वर्कशॉप में, वी कैन हैव आवर ओन टंग एग्जामिनेशन फर्स्ट, है ना। यस। हम अपने खुद के टंग का एनालिसिस करेंगे। और पेशेंट का तो हम करने वाले, लेकिन खुद से स्टार्ट करते हैं पहले। और करेक्ट, करेक्ट। आपको जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और कोर्स के डिटेल्स तो मैम ने बता ही दिए हैं। और कोर्स की फी बहुत मिनिमल रखी है, ताकि सबको इस चीज से परिचय हो, है ना। करेक्ट। तो 990 इज वेरी नॉमिनल फीस फॉर दिस वर्कशॉप। अब मैं आप सभी से कहूंगी कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एंड आई एम, मैं आपके फीडबैक का वेट कर रही हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक एंड योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स कि आपको आज का सत्र कैसे लगा। एंड मैं सभी से कहूंगी कि जैसे मैडम इस फाउंडेशन के माध्यम से उनके इसमें सोशल एक सेवा के रूप में अलग अलग सत्रों को प्रस्तुत करती रहती है, मुझे पता है, हम सालों से देखते आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक नॉमिनल फीस देकर एक पिज्जा ऑर्डर करते तो 500 रुपए लगते। करेक्ट है स्वाति जी? एक पिज्जा खाना होता है तो 500 रुपए लग जाते हैं। बट यहाँ पे हमें सीखने के लिए इतना कम अमाउंट मैडम ने रखा है फीस के रूप में, तो मुझे लगता है आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। 5 दिन आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाती है। जैसे ये सारा हैंडल करते हैं मैडम मंजू चिट्टे मैडम एंड ऑल, उनकी टीम, शिल्पा जी। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप सीख कर अपने आप को मजबूत बनाइएगा। डेली कुछ सीखना चाहिए, मेरे मुझे लगता है इससे, और सीखने से ना हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल सा प्रोसीजर होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस, एंड रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर 1 ईयर। और क्या चाहिए आपको? कोई गारंटी लेते सामान तो 6 महीने की वारंटी होती है, या तो आपको 1 साल की रिकॉर्डिंग मिल रही। सो मैडम गुड इवनिंग, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर एपी दास भुवनेश्वर से। ओके। मेरा क्वेश्चन है कि आप खाली डायग्नोसिस बताएंगे कि ट्रीटमेंट भी गाइड करेंगे?
सर ट्रीटमेंट में कुछ चीजें हैं, जैसे जहां अभी मैंने जैसे बोला था ब्लैक टंग का, तो वहां पे अभी ये तो डायग्नोसिस का ही सत्र है बेसिकली, बट जहाँ पे कुछ ये होगा वहां पे हम ट्रीटमेंट भी बताए। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू। सुनील जी, सो और किसी का कोई प्रश्न? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंजू मैम फॉर दिस opportunity to speak on some different topic and to present my views. And it's absolutely very different topic. So I suggest you to enhance your skill and join the course. Thank you very much. Yes, Rushali ji, Mahesh ji. Yeah, madam will share on the, I think, इनका YouTube channel है. On that YouTube channel, she will share this today's सत्र का जो पूरा रिकॉर्डिंग है वो आपको सुनने को मिलेगा और आप सच में देखिए जी, बाकी ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन आ जाती है। एनी मोर क्वेश्चंस? Ma'am, we'll end the session. या यस, Thank you. थैंक यू। Thank you, everyone. Good night.